Ignited Minds Tutorials recently released an informative video on the topic of economy and occupations, specifically for Class 9 Geography, following the Maharashtra State Board syllabus. This video aims to enhance knowledge and understanding of the economic systems and job opportunities available in two countries, India and Brazil. The video presents a comparative study of the economies of India and Brazil, highlighting their similarities and differences. It delves into key sectors like agriculture, industry, and services, shedding light on the main occupations within each sector. By exploring these vital aspects, students can gain a comprehensive understanding of the economic structures and potential job prospects in both nations. Through this knowledge explanation article, students are encouraged to reflect on various topics covered in the video, such as agricultural practices, industrial growth, and service-oriented job opportunities. By comprehending the economic landscapes of India and Brazil, students can develop a global perspective and expand their knowledge beyond their local context. Ignited Minds Tutorials video not only meets the requirements of the Maharashtra State Board syllabus, but also provides additional insights and examples concerning the study of economy and occupations. By engaging with this valuable educational resource, students can actively participate in the exploration and analysis of the economic dynamics within India and Brazil, igniting their minds with the knowledge necessary to navigate the ever-changing world of work. Okay, people, we were studying about the differences between India and Brazil on various aspects, and now we will talk about differences in terms of economy and occupation. So economy और occupation में क्या-क्या differences हुए भाई साहब, ठीक है? What are the differences between the economic activities in Brazil and what are the economic activities that are there in India, ठीक है? तो economic activities अगर in Brazil, ये तो हो गया था ना? नहीं? अच्छा, यहाँ तक हुआ था, आधा हुआ था, okay. हाँ, क्या बोल रही हो? 8.2 तक हो गया था, ओके। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इंडिया में है वो क्या क्या हैं, ठीक है? सो डेवलपिंग इकोनॉमी है भाई साहब इंडिया की, तो इट इज़ बेसिकली डेवलपिंग, और जैसे ब्राज़ील एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वैसे ही इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है भाई साहब, ठीक है? डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलप कर रहा। तो हमने देखो यहाँ पे ब्राज़ील का देखा क्या क्या, ये पूरा हमने यहाँ तक पहुँचे थे क्या हम? ओके, तो इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेशनल इनकम इज़ हायर देन ब्राज़ील, तो इनकम यहाँ पे हायर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है भाई साहब? लोअर है देन ब्राज़ील, ठीक है? इनकम इज हायर देन ब्राज़ील बट पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन ब्राज़ील, और ये हमने उस दिन डिस्कस किया था क्यों है? पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है? तो जो टोटल इनकम है वो डिवाइड होता है हायर पॉपुलेशन में, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, सब्सिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर है। 60% ऑफ लैंड इज अंडर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ एनॉर्मस एक्सपेंस ऑफ लेवल प्लेन्स, रिच सॉइल्स, वाइड क्लाइमेट वैरायटी, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एक्सेट्रा। तो आपके बहुत सारे कारण की वजह से इतना बड़ा जो लैंड एरिया है दैट इज अंडर कल्टीवेशन, ठीक है? 60% ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ एनॉर्मस एक्सपेंस ऑफ लेवल प्लेन्स, तो प्लेन लेवल्स हैं भाई साहब, रिच सॉइल्स हैं यहाँ पे, वाइड क्लाइमेट वैरायटी है, तो क्लाइमेट वैरायटी भाई साहब बहुत विभिन्न प्रकार की हैं, और क्योंकि वाइड क्लाइमेट वैरायटी है देयर आर वाइड रेंजेस ऑफ क्रॉप्स एज वेल, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, ठीक है? तो बहुत बड़े समय तक लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके क्या क्या हैं? मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हाट? राइस, व्हीट, मेज एंड शोरगुम। तो राइस, व्हीट, ठीक है, मेज एंड शोरगुम आर द मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? ओके, प्लांटेशंस, टी, कॉफी एंड रबर। टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस आर देयर। प्लांटेशंस मतलब क्या होते हैं? जिनको हम ग्रो करते हैं बहुत बड़े नंबर्स में,
ठीक है, दीज आर नॉट फूड क्रॉप्स, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। कैश क्रॉप्स आपके क्या क्या हो गए, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब आपके हो गए भाई साहब कैश क्रॉप्स, दीज आर कैश क्रॉप्स, ठीक है। ओके, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। माइनिंग, माइनिंग क्या क्या होती है भाई साहब, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है और यहाँ पे ज्यादा करके आपका माइनिंग एक्टिविटीज होता है। माइनिंग एक्टिविटीज मतलब यहाँ से हमको मिनरल्स मिलते हैं, दीज आर मिनरल्स विच आर रिच, ठीक है, जैसे आयरन ओर वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमको छोटा नागपुर प्लेटू से मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। कोल, कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, तो कोल कहाँ पे होता है भाई साहब, कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र में होता है ये, ठीक है। मिनरल ऑयल वेल्स, ठीक है, दिग्बोई इन आसाम, यहाँ पे भाई साहब मिनरल ऑयल मिलता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र, ये मुंबई हाई है। कालोल एंड कोयाली इन गुजरात, तो ये सब आपके भाई साहब क्या है, दीज आर मिनरल ऑयल वेल्स, जहां से मिनरल ऑयल मिलता है। रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर गोदावरी, गोदावरी रिवर के माउथ में भाई साहब मिनरल ऑयल डिस्कवर किया गया है। स्टोन्स लाइक मार्बल एंड क्यूडापा, ठीक है, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में ये होता है भाई साहब, जिससे काफी सारे आपके टाइल्स वगैरह ये सब इससे ही बनते हैं, ठीक है। ओके, फिशिंग आपकी कहां पे होती है, कोस्ट लाइन, आपका इंडिया का जो कोस्ट लाइन है दैट इज अ ह्यूज कोस्ट लाइन, यहां से लेकर यहां तक देखो, ठीक है, राइट फ्रॉम गुजरात टू बे ऑफ बंगाल के आपके वेस्ट बंगाल तक, पूरा आसाम तक, ये आपका जो कोस्ट लाइन है दैट इज अराउंड 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड अलॉन्ग दिस एंटायर कोस्ट लाइन फिशिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। ओके, फ्रेश वाटर फिशिंग, फ्रेश वाटर फिशिंग और मरीन वाटर फिशेज में डिफरेंस है। मरीन वाटर फिशेज मतलब सॉल्टी फिशेज होते हैं, सॉल्टी वाटर में जो फिशेज होते हैं उनको हम बोलते हैं मरीन वाटर फिशेज, और फ्रेश वाटर फिशेज मतलब क्या होते हैं, जो आपको रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में डिस्कवर होते हैं, ठीक है। 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन इस पूरे एरिया में होता है, कैरिड ऑन इन रिवर्स, कैनल्स, इरिगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर बेलीज, कार्प एक्सेट्रा। तो मरीन फिशिंग भाई साहब कहाँ पे होती है, 40% ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश, तो 40% भाई साहब आपका टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश मरीन फिशिंग में होता है। कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर्स इन द वेस्ट फ्रॉम क्लच, मलाबार कोस्ट टू कोरामंडल कोस्ट इन द ईस्ट, तो इतना बड़ा भाई साहब फिशिंग का एरिया है। फॉर एग्जाम्पल सार्डिन्स, मैकेरल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स, हॉर्स मैकेरल्स, क्यूपिड्स एंड सिल्वर बेलीज, ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज, मेटलर्जी इंडस्ट्री है भाई साहब, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, मेटलर्जी इंडस्ट्री ज्यादा करके कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज, इन जगह पे भाई साहब कॉन्सेंट्रेटेड। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके कहां पे होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉरेस्ट, ठीक है, एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स। कोयर, कोरपा एंड फिशिंग कैनिंग इंडस्ट्रीज, कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला, ये कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला में है। रिफाइनरीज भाई साहब, कोयाली, दिग्बोई, नूनमती एंड बोनगाईगांव सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज, यहाँ पे भाई साहब इसकी रिफाइनरी होती है, ठीक है। मथुरा एंड बरौनी लोकेटेड इन द इंटीरियर एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। सीमेंट इंडस्ट्री, ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, तो सीमेंट जो बनता है वो रॉ मटेरियल से बनता है और ये क्लोज टू रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है, गुजरात में, राजस्थान में एंड तमिलनाडु, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड नियर द बिग सिटीज, ज्यादा करके ये बिग सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। ट्रेड अगर आप देखेंगे, एक्सपोर्ट आइटम्स में क्या क्या है, टीज, मैंगोज, कॉफी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, ठीक है, ये सब आपके एक्सपोर्ट आइटम्स है। टी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का टी बहुत दूर दूर तक जाता है। मैंगोज, जैसे आपके जो अल्फेंसो मैंगोज हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। स्पाइसेस, मसाले, इंडिया अपने मसालों के लिए जाना जाता है, इनफैक्ट पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो अपने मसालों के लिए जाना जाता है। लेदर एंड लेदर गुड्स, ठीक है, आयरन ओर, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। दीज थिंग्स आर एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट आइटम्स क्या क्या है आपके, पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, ये सब आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए। इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स, ठीक है। ओके, इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू
लो नेशनल इनकम, मैसिव पॉपुलेशन, बिग फैमिली साइज, लो फूड गेन प्रोडक्शन। इंडियाज पर कैपिटल इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत बड़े पॉपुलेशन की वजह से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज हाईली कंडीशनड बाय द अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के लिए ये ज्यादा करके रॉ मटेरियल्स के आजू बाजू ही मिलता है। प्रीवियसली 8 बोर्ड क्वेश्चंस हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। कोस्टल एरिया होना जरूरी है भाई साहब, ठीक है, बिहार, ठीक है। व्हाट आर द, यहाँ पे ऑड वन है, ऑड वन मतलब जो आपका कोस्टल एरिया नहीं रहेगा उसमें भाई साहब सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जो कोस्टल एरिया होगा वहीं पे आप सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज गुजरात अ कोस्टल एरिया? यस। इज राजस्थान अ कोस्टल एरिया? यस। तमिलनाडु इज अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे भाई साहब सॉल्ट प्रोडक्शन होगा। बिहार कोस्टल एरिया नहीं है तो सॉल्ट प्रोडक्शन नहीं होगा। व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया? सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन और डेवलपमेंट जो है तो सिमिलर हैं। डिफरेंसेस टाइप्स ऑफ फिशिंग और मेजर फिशेस, ये डिपेंड करता है कि कैसा लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिफरेंसेस आर देयर इन द टाइप्स ऑफ फिशिंग एंड द मेजर फिशेस। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ द अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड और डेवलपिंग। क्या हो जाएगा भाई साहब? डेवलपिंग टाइप, ठीक है, इट विल बी डेवलपिंग टाइप। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे भाई साहब ब्राजील, ठीक है, आपके इंडिया, ये सब भाई साहब इंक्लूसिव है ब्रिक्स में। तो मेंबर्स और ऑड वन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिसंबर 2020 का है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू ब्राजील इन यूएस डॉलर्स 2008 में भाई साहब 3700, 2009 में 2200, 2010 में 4200, 2011 में 6100 एंड 2012 में 5000। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008? ऑब्वियसली 3700। तो इस तरीके का भाई साहब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ में आपको ये ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस आपने क्या रिप्रेजेंट किया है भाई साहब? ईयर्स। ऑन द वाई एक्सिस आपने क्या रिप्रेजेंट किया है? 1000 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, ओके। सो आपका 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008 वाज हाउ मच? 3700, ठीक है। विच ईयर हैज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू? सो ऑब्वियसली 2011 हैज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू क्लोज टू 6100 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2009 टू 2011? 2009 से लेकर भाई साहब 2011 तक कितना एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है? इसको माइनस कर दो आपका 3900 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इंक्रीज। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ज्यादा करके आपके ग्राफ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड मेक इंडेक्स। मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम, दिग्बोई, ठीक है, आपका सिंबल देखो इस तरीके का है, ठीक है। मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम, दिग्बोई, दैट इज बेसिकली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क। What type of agriculture is mainly practiced in India? Subsistence type agriculture is practiced. Give geographical reason. Fishing plays an important role in the economy of India. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा भाई साहब 7500 का आपका कोस्टल लाइन है। 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन इज अवेलेबल फॉर फिशिंग। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ मरीन एंड इनलैंड, हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है। फिश एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट इन द कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन्स में फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है, ओके ओके ओके। सो अगर चैप्टर एट अ ग्लांस देखेंगे आप, ब्राजील और इंडिया की जो इकोनॉमीज को हम कंसीडर करेंगे, दोनों की आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब सोशलिस्ट पब्लिक और प्राइवेट का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। नेशनल इनकम इसका लोअर देन इंडिया है, नेशनल इनकम हायर देन ब्राजील है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इज हायर देन इंडिया, पर कैपिटा इनकम लोअर देन ब्राजील, और ये हो रहा है आपके पॉपुलेशन की वजह से। एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे डिफरेंस, मेन ऑक्यूपेशन इन हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज, मेन ऑक्यूपेशन 60% लैंड इज अंडर कल्टीवेशन इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज में ही एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे भाई साहब 60%, 60% जो लैंड है दैट इज अंडर कल्टीवेशन। मेन क्रॉप्स आपके क्या क्या हैं? राइस एंड मेज, राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा, दीज आर द मेन क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स क्या क्या है यहाँ पे? कॉफी, कोकोआ, रबड़, सोयाबीन एंड शुगर केन। प्लांटेशन है यहाँ पे, मेन क्रॉप्स आपके यहाँ पे क्या क्या है? प्लांटेशन आपके क्या क्या? टी, कॉफी, रबड़, ठीक है। फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा, ठीक है। कैश क्रॉप्स हैं आपके शुगर केन, कॉटन, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
ठीक है। एनिमल रियरिंग होती है, कैटल, शीप एक्सेट्रा इन सवाना ग्रासलैंड्स, तो कैटल की रियरिंग होती है, ठीक है, और उसको भी बेचा जाता है। माइनिंग डेवलप्ड इन हाईलैंड रीजन एंड ईस्टर्न पार्ट, मेन ऑक्यूपेशन इन छोटा नागपुर प्लेटू। मिनरल्स आयरन ओर, निकल, मैंगनीज, कॉपर एक्सेट्रा। मिनरल्स कोल, मिनरल ऑयल, स्टोन्स आपके क्या क्या हैं, मार्बल एंड कुडापा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली। ब्राजील का देखो फिशिंग कोस्ट लाइन कितना बड़ा है, 7,400 किलोमीटर लॉन्ग। इनलैंड फिशिंग उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। इनलैंड फिशिंग मतलब जहां पे सीज, लेक्स, रिवर्स और आपके रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जिस टाइप की फिशिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनलैंड फिशिंग, उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। मरीन फिशिंग इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। फिशिंग कोस्ट लाइन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। इनलैंड फिशिंग 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन, इसमें भाई साहब 60% कंट्री का फिश प्रोडक्शन होता है। मरीन फिशिंग 40% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रीज आपके मेजर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज यहाँ पे मेटलर्जी है, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, कोपरा एंड फिश कैनिंग, कॉयर, रिफाइनरी, सीमेंट एक्सेट्रा। ट्रेड एक्सपोर्ट आइटम्स आयरन ओर, कॉफी एक्सेट्रा। इंपोर्ट आइटम्स मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में, ठीक है। एक्सपोर्ट आइटम्स यहाँ पे क्या क्या है बोलो, टी, मैंगोस एक्सेट्रा। इंपोर्ट आइटम्स भाई साहब क्या क्या है, पेट्रोलियम, मशीन्स, ये सब आपको भाई साहब इंपोर्ट करना रहता है। ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है जिनसे सब हम मैसिव ट्रेड करते हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, ये सबसे हमारा बिजनेस का लेन देन है। इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील, आईटी, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, बिजनेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन दिस टॉपिक। लेट अस प्रोसीड अहेड टू द अदर वन। Just one moment. Okay, people in geography, between India and Brazil, we are going to start with tourism, transport and communication. ठीक है, so आपका भाई साहब tourism in Brazil and India, transport in Brazil and India, communication in Brazil and India, and longitudinal extent and time. तो tourism in Brazil and India, अगर आप ब्राज़ील का टूरिज्म देखेंगे, क्योंकि टूरिज्म से हमको बहुत बड़ा एक इनकम आता है और टूरिज्म पे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो विजिटिंग प्लेसेस हैं उनको सिर्फ प्रिजर्व करना पड़ेगा और पब्लिक भाई साहब आती है बाहर से, ठीक है। ओके, टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट। तो क्योंकि हमारे गाँव का शहरीकरण हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े उसमें आपका इको टूरिज्म डेवलप हो रहा है। इको टूरिज्म मतलब क्या है, लोग टूरिज्म करने जाते हैं आपके इकोनॉमिक, मतलब आपका जो इको टूरिज्म मीन्स दैट आपका इकोलॉजिकल या नेचुरल ब्यूटी की वजह से इको टूरिज्म होता है, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी को देखने जाते हैं लोग इधर से उधर। इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट। क्लीन वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटिफुल आइलैंड्स, ऑर्किड्स, डीप एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजन एंड वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। तो फॉरेन टूरिस्ट भाई साहब इससे अट्रैक्ट होते हैं। क्या क्या भाई साहब, क्लीन वाइट एंड सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट से अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, ठीक है, ऑर्किड्स मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भाई साहब, डीप एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजन एंड वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी। तो जीडीपी में भाई साहब टूरिज्म का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, तो आपके भाई साहब ये सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। मनाउस, ठीक है, देन वी हैव ब्रासिलिया, साओ पाउलो एंड रियो डी जेनेरियो, ये आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सब मतलब वहाँ के लोग भी और प्लस बाहर के लोग भी आते हैं। तो इसके लिए इन सब जगहों पे सोर्सेस ऑफ इनकम गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, कैसीनो, बीच, ठीक है। ओके, इंडिया में भाई साहब टूरिज्म को अगर हम देखेंगे, न्यू एवेन्यूज आर डेवलपिंग इन टूरिज्म। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट जैसे भाई साहब आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, बहुत सारे जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ठीक है। हेरिटेज, कल्चर, नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडिया में इलाज थोड़े सस्ते में होता है, सो बहुत सारे लोग दूर दराज से इंडिया में इलाज करवाने आते हैं, मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं हम। बिजनेस टूरिज्म, इंडिया एक ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है भाई साहब ग्लोबल लेवल पे, तो काफ़ी सारे लोग भाई साहब
बिजनेस टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। सो बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स रिलेटिवली लेस टू द जीडीपी। अगर हम देखेंगे जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेस है। सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, इंडिया में टूरिज्म में कॉन्ट्रीब्यूशन लेस है। हम अगर इसको डेवलप करें तो होगा, ठीक है। जैसलमेर, आगरा, श्रीनगर, दार्जिलिंग, अजंता एलोरा, ऊटी, दीज आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस दैट वी हैव, ठीक है। श्रीनगर है भाई साहब, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, प्लस इंडियन टूरिस्ट भी जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव जैसलमेर जो राजस्थान में है, आगरा फॉर ताजमहल, ठीक है। देन वी हैव अजंता एंड एलोरा केव्स, देन वी अजंता एंड एलोरा, देन वी हैव ऊटी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील डैश इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। रियो डी जेनेरियो, साओ पालो, ब्रासिलिया, बोलिविया। तो ये हो गया आपका ब्रासिलिया, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी, गेन इंफॉर्मेशन। तो इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी, इसकी वजह से है भाई साहब। रीजंस फॉर फॉरेन टूरिस्ट टू विजिट इंडिया, हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चर, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म, ठीक है। ये रीजंस हैं फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया में विजिट करने का, ठीक है। स्टेट विद रीजंस वेदर द सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड। क्या ये इनविजिबल ट्रेड है? ऑब्वियसली है, राइट, इट इज राइट, क्योंकि आपको ये धंधा दिख नहीं रहा है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो एक विजिबल ट्रेड है, आपने वो चीज खरीदी, इसके आपने पैसे दिए, तो ये एक विजिबल ट्रेड है। टूरिज्म एक इनविजिबल ट्रेड है। मतलब देखो, जैसे एक कोई जगह है, जैसे मतलब ताजमहल को लोग देखने आ रहे हैं, ये लोग आए यहाँ पे, होटल में रह रहे हैं, होटल वालों की कमाई हो रही है, और फिर उन्होंने कोई कैब बुक किया तो कैब वाले की कमाई हो गई, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों की कमाई हो रही है। तो एक इनविजिबल ट्रेड है। हम यहाँ पे इसको विजिबली नहीं देख सकते कि कोई प्रोडक्ट आपने लिया और उसके पैसे दिए, इसको हम बोलते हैं विजिबल ट्रेड। बट टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड। कितने लोग उसमें से बेनिफिट हो रहे हैं और कैसे बेनिफिट हो रहे हैं, इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट, ठीक है। सो टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड, यस इट इज राइट। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड मोर इन ब्राजील। व्हाई? क्योंकि ब्राजील में भाई साहब आपके व्हाइट सैंड बीचेस हैं, जो मतलब इको टूरिज्म मतलब होता है एनवायरमेंटल रिलेटेड टूरिज्म, एनवायरमेंट की वजह से लोगों का आना, ठीक है। एनवायरमेंट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सीन है, बहुत सिनेरियोज हैं, तो इसके लिए लोग जो आते हैं इसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म। सो व्हाइट सैंड बीचेस हैं, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, जिसकी वजह से इको टूरिज्म डेवलप हो रहा है। ब्यूटीफुल ऑर्कार्ड्स, ऑर्कार्ड्स मतलब जहां पे बरसा फल फूल होते हैं, ठीक है, से गार्डन्स। डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न विच अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस फॉर्म इको टूरिज्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। टू प्रोमोट टूरिज्म while conserving the environment of the tourist places। तो हम यहाँ मतलब ब्राजील में टूरिज्म को प्रमोट भी किया जाता है और इसको भाई साहब कंजर्व भी किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्राजील एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील एंड इन इंडिया। तो ब्राजील में और रोडवेज आर द मैक्सिमम। तो रोडवेज आपके बहुत मैक्सिमम है ब्राजील में, ठीक है। रोड्स आर मोस्ट डेंस इन द ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में भाई साहब रोड्स आपके बहुत डेंस हैं, ठीक है। रेलवेज आर लेस डेवलप्ड। ब्राजील में भाई साहब रेलवेज का लेस डेवलपमेंट हुआ है। नेविगेशन इन अमेज़न रिवर इज मेनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो आप अमेज़न रिवर को नेविगेट करते हैं, अमेज़न रिवर में जितने भी आपके शिप्स वगैरह जाते हैं वो बिजनेस पर्पसेस के लिए जाते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ अमेज़न टू द इक्वेटोर्स इन पेरू देयर इज अप्रॉक्सिमेटली 3700 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत ही लंबा वाटरवेज है ये, ठीक है। ओके, so Parana river in the south is an important river which is used for water transport। तो Parana river है साउथ में जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। कोस्टल एरियाज आर यूज फॉर कोस्टल शिपिंग। लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज, ज्यादा एयरवेज नहीं है, ठीक है। नॉट मच ऑफ द सिटीज आर बेसिकली कनेक्टेड बाय एयरवेज। तो आप देखोगे ये एयरपोर्ट्स हैं बेसिकली, दीज आर एयरपोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इंडिया में आते हैं भाई साहब। डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज। इनफैक्ट इंडिया में हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, ठीक है। इंडिया का रेलवेज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज। रेलवेज और रोडवेज भाई साहब खचाखच है यहाँ पे, ठीक है। ओके, व्हाट इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के ग्रोथ में और इंडिया के इकोनॉमी में रेलवेज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जॉब्स भी इसमें बहुत जनरेट होते हैं और इसमें भाई साहब ट्रांसपोर्ट बहुत सारा कुछ कवर होता है रेलवेज में हमारा, ठीक है। रेलवे नेटवर्क अगर आप देखोगे ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रेलवे नेटवर्क है।
रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। तो इन जगहों पे रिलेटिवली लेस है। रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स में कम है, क्यों? क्योंकि हिल स्टेट्स में रेलवेज का लेआउट उतना आसान नहीं होता, पहाड़ी एरिया है भाई साहब, वहां से आप क्या ही रेलवे लाइंस निकालोगे। रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, और इंडिया का सेंट्रल पार्ट और राजस्थान, इन सब जगहों पे रेलवे नेटवर्क थोड़े कम है। डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में काफी डेंस है, ठीक है। वाटरवेज भाई साहब अगर आप देखोगे, वाटरवेज contribute to about 1% of the country's transportation and comprises of rivers, canals, backwaters, creeks, etc. ये सब waterways हैं आपके, ठीक है। तो waterways contribute to about 1% of the country's transportation। तो आपका waterways जो है तो 1% है, ठीक है, and comprises of rivers, canals, backwaters, creeks। Approximately 95% of India's foreign trade is conducted through waterways, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है 95% आपके वाटरवेज से जाता है, मतलब यहाँ से आपके सी से, ओशन से, इससे वाटरवेज से जाता है, ठीक है। एयरवेज एज कंपेयर टू ब्राजील, एयरवेज आर मोर डेवलप्ड, ठीक है। ऑल्सो द यूज ऑफ इंटरनल एयरवेज इज इंक्रीज। तो हमारे ब्राजील के कंपैरिजन में हमारे ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एयरवेज, रेलवेज एज वेल एज रोडवेज, ठीक है। इट इज मच मोर डेवलप्ड, ओके। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? इट हैज बीन ऑलवेज रेलवेज। रेलवेज हमारे इंडिया में लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। वी रिलाई ऑन द सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज वाटरवेज कनेक्ट द कंट्रीज डायरेक्टली। वाटरवेज भाई साहब कंट्रीज को डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं, एंड कंट्रीज विच आर लोकेटेड फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर कैन सेंड कंबरसम गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर थ्रू वाटरवेज। पहला राइट है, वाटरवेज कनेक्ट द कंट्रीज डायरेक्टली, कंट्रीज विच आर लोकेटेड फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर कैन सेंड कंबरसम गुड्स। कंबरसम मतलब भारी भरकम चीज, वो वाटरवेज से भेज सकते हैं। एरोप्लेन भारी भरकम चीजें नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर थ्रू वाटरवेज। तो आपका भाई साहब दोनों भी करेक्ट है, 1 और 2 दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। वाटरवेज एक दूसरे कंट्रीज को कनेक्ट करता है, और प्लस जो भारी भरकम गुड्स हैं उनको वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान है। इट इज ईजियर टू गेट ट्रांसपोर्टेड बाई वाटरवेज, ओके। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश is less in the transport system of Brazil, roadways, airways, waterways और railways। तो इसमें भाई साहब एयरवेज का बहुत कम है as compared to India, ठीक है। State whether the given sentence is right or wrong. The indicator of development in a country is the development of transport in that country. Is it correct? Yes, it is. आपका जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा भाई साहब उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही एक कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। So it is right. Previously asked board questions. In India, the railway network is relatively less dense in the state of उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। कौन सा होगा भाई साहब? ऑब्वियसली राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा जो रेगिस्तान है वहां से कौन हम रेलवे लाइन लुक करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काफी डेंस है। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। बहुत डेंस नेटवर्क डेवलप हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। इजी एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज, ठीक है। हाई पॉपुलेशन एंड वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो आपका बहुत हाई पॉपुलेशन है और जो आपका वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है। देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप एंड गिव इंडेक्स। अ पोर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर निग्रो एंड रिवर अमेजन, मनाउस पोर्ट, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर निग्रो एंड रिवर अमेजन। तो ये हो गया आपका पोर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। मार्क द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप एंड गिव इंडेक्स। चेन्नई पोर्ट, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। व्हाट डज द मैप शो? नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। इट शोज द नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। नेम द 2 प्लेसेस which connect north south highway, Srinagar and Kanyakumari. Name any 2 ports from eastern coast, Chennai, Visakhapatnam and Kolkata, ठीक है। These are basically the ports, Chennai, Visakhapatnam and Kolkata, ठीक है। Which is the southernmost port located at western coastline of India? कौन सा southernmost post है? Which is the southernmost post? Cochin, ठीक है। Name the important port of Maharashtra, Mumbai. Mumbai is the important port of Maharashtra. What does the map show? What does the map show? Important railway routes and airports, ठीक है, obviously. Name any 2 airports from the eastern coast. Eastern coast से भाई साहब चेन्नई, विशाखापट्टनम, हावड़ा, all these are basically ports, ठीक है। In which states railway routes do not exist?
रेलवे रूट्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं? सिक्किम एंड मिजोरम में। भाई साहब ये यहाँ पे रेलवे रूट्स बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतने हाई माउंटेनियस एरियाज पे हैं कि इन पे रेलवे रूट्स बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेम द सदर मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी, ठीक है, दैट इज बेसिकली कन्याकुमारी। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू मैंगलोर, वास्को डी गामा, ठीक है। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज श्रीनगर। जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का वो है श्रीनगर, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन इन ब्राजील एंड इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर एक्सट्रीमली डेवलप्ड एंड इफेक्टिव। ब्राजील में भी और इंडिया में भी आपका टेलीकम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली डेवलप हुआ है। मतलब आपका ये जो फ़ोन की नेटवर्क है, फ़ोन का जो कॉलिंग है, ठीक है, डेटा है, ये सब काफ़ी हाई मात्रा में डेवलप हुआ है। मोर डेवलप्ड इन साउथ सेंट्रल ब्राज़ील बट लेस डेवलप्ड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, includes telephone, mobile phone, internet, television broadcast, radio announcements, internet, etc. More than 45% of Brazilian population uses the internet. तो 45% से ज़्यादा ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज़ करता है, ठीक है। Hurdles in the expansion of telecommunication services, dense vegetated areas and large pockets of unpopulated land. ये भाई साहब जैसे आप बोलेंगे ना गांव खेड़े में आप जाएंगे नेटवर्क नहीं ले रहा है, ठीक है, ऐसा एरिया बहुत ज़्यादा है। देखो ये अमेजन फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया है। सो डेंस वेजिटेशन, या भाई साहब बहुत दूर दराज जहाँ पे पॉपुलेशन है नहीं वहाँ पे आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो डेंस वेजिटेटेड एरियाज एंड लार्ज पॉकेट्स ऑफ अनपॉपुलेटेड लैंड, दैट इज बेसिकली कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील। Brazil is all set to send its domestically made satellites into space with its own rockets. अभी भाई साहब वो तैयारी कर रहा है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में स्पेस में with its own rockets, जो इंडिया पहले ही कर चुका है, ठीक है। ओके, the civilian authority responsible for the country's space program, that is Brazilian Space Agency (AEB) है। India telecom industry has become one of the fastest growing sectors in India. India is one of the largest users of smartphones as well as the internet. The space launching mission, the space launching program in India is looked after by ISRO, ठीक है। ISRO has developed several satellites for India और बहुत सारे satellites लॉन्च भी करवाए हैं और वो घूम भी रहे हैं। The Delhi communication infrastructure is fairly modern, particularly in Dash, Brazil। कहाँ पे भाई साहब? आपका सेंट्रल साउथ ब्राज़ील में। Dash has become one of the largest user of smartphone and internet, obviously India, ठीक है। Dash is one of the major obstacles in the development of telecommunication services. Dense forest, ठीक है, और ये आपका एक मेजर आपका हिंड्रेंस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड टाइम, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का, फ्रॉम द एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट टू एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट। ये थोड़ा आपको याद रखना है। 168 मिनट्स है, दैट इज 2 hours and 48 minutes। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है 2 घंटे 48 मिनट का है, ठीक है। From the extreme east to the extreme west point, the difference is of 168 minutes. That is 2 hours 48 minutes. What is the extreme east point known as? Nascente do Raiomoa. ठीक है? Westmost point is Nascente do Raiomoa, and the easternmost point is Ponta do Cias. ठीक है? So that is basically आपका जो आपका वेस्ट पॉइंट है, और इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 168 मिनट्स का। 4 टाइम जोन्स हैं इसके, 4 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। ग्रीनविच मेडियन टाइम बाय 2, 3, 4 एंड 5 आवर्स। तो अलग अलग टाइम जोन्स में इस पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है। 4 टाइम जोन्स हैं। ग्रीनविच मेडियन टाइम से इनका डिफरेंस कितना है? 2, 3, 4 और 5 घंटे का, ठीक है। जीएमटी टाइम से 2 घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे का डिफरेंस है और 5 घंटे का डिफरेंस है। 4 टाइम जोन्स हैं। द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम बीआरटी इज 3 आवर्स बिहाइंड जीएमटी। तो बीआरटी जो है ये आपका ऑफिशियल टाइम है जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 3 घंटा पीछे है, 3 आवर्स बिहाइंड जीएमटी, ठीक है। इंडिया में आते हैं भाई साहब, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज 128 मिनट्स, लेसर देन ब्राजील, ठीक है। 2 घंटे का है, ठीक है। तो आपका भाई साहब इट पासेस थ्रू इलाहाबाद, 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द आईएसटी एंड पासेस थ्रू इलाहाबाद। द आईएसटी इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो हम जीएमटी के अहेड हैं, ब्राजील जीएमटी के पीछे है, ठीक है। ओके, so Brazil's time is behind India's time because India is located in the eastern hemisphere while Brazil is located in the western hemisphere. Brazil is located in the eastern hemisphere while India is located in the western hemisphere. Wrong है भाई साहब। India has only one standard time zone, ये भी wrong है। Brazil has 4 time zones, नहीं। हमारा भाई साहब India is located in the eastern hemisphere so it is ahead of GMT and Brazil is located in the western hemisphere so it is behind GMT, ठीक है।
बिकॉज ऑफ डैश ब्राजील हैज 4 डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। भाई साहब 2 घंटे 48 मिनट का डिफरेंस है इनके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, 2 घंटे 48 मिनट का डिफरेंस है, एंड हेंस दे हैव 4 डिफरेंट टाइम जोन्स। ओके, आंसर इन वन सेंटेंस, which longitude in India is considered as the Indian Standard Time? The one that passes through इलाहाबाद, IST बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इसको हम बोलेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हम 82 डिग्री 82.5 भी लिखते हैं। देखो 5 क्यों लिखते हैं, 0.5 क्यों हो जाएगा, 30 मिनट्स मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स का आधा, मतलब 30/60 कितना हो जाएगा, 3/6, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5, तो ये हो गया 0.5। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये आपका भाई साहब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट पासेस थ्रू द। ओके, तो अगर आप चैप्टर ग्लांस देखोगे, टूरिज्म में अगर हम देखें ब्राजील और इंडिया में, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्लीन व्हाइट सैंड बीचेस है यहाँ पे, ज्यादा करके यहाँ पे इको टूरिज्म है, मॉन्यूमेंटल टूरिज्म कम है, मेडिकल टूरिज्म कम है, ठीक है, बिजनेस टूरिज्म भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पे इको टूरिज्म काफी है। क्लीन व्हाइट सैंड बीचेस हैं यहाँ पे, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, ऑर्किड्स हैं, जिसके वजह से पब्लिक आती है। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी, यहाँ पे टूरिज्म का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है। न्यू एवेन्यूज आर डेवलपिंग इन टूरिज्म, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑफ टूरिज्म है, इको टूरिज्म तो है ही, प्लस उसके साथ और क्या क्या है भाई साहब, मेडिकल टूरिज्म है, फिर भाई साहब आपका अलग अलग ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल ब्यूटी, मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट्स फॉरेन टूरिस्ट, टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स रिलेटिवली लेस टू द, यहाँ पे टूरिज्म कम है लेकिन टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी, यहाँ पे टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी, ठीक है। ब्राजील में देखो रोडवेज आर द मैक्सिमम मोस्ट डेंस इन द ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे रोडवेज सबसे ज्यादा है और डेंस कहाँ पे है भाई साहब, ईस्टर्न पार्ट में। रेलवेज आर लेस डेवलप्ड, रेलवेज भाई साहब आपके लेस डेवलप हुए हैं। Amazon रिवर यूज फॉर मेनली फॉर नेविगेशन, तो Amazon रिवर का ज्यादा करके यूज नेविगेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज है इंडिया में, नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज इज वेरी डेंस, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो रेलवेज का बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Amazon रिवर यूज फॉर मेनली फॉर नेविगेशन, तो Amazon रिवर का यूज होता है मेनली फॉर नेविगेशन, ठीक है, मतलब रिवर बेस्ड आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पराना रिवर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, आप लोगों का हो गया भाई साहब 9th वाले, डन, कितना टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी फटाफट, सिर्फ बंदे को है। पराना रिवर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ये पराना रिवर भाई साहब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। रेलवे नेटवर्क लेस डेंस इन हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेट्रा एंड डेंस इन द सदर्न इंडियन प्लेन्स। कोस्टल एरियाज आर यूज फॉर कोस्टल शिपिंग, तो कोस्टल एरियाज का यूज होता है ज्यादा करके कोस्टल शिपिंग में, ठीक है। वाटरवेज कंट्रीब्यूट टू अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज, तो आपका एयरवेज का कंट्रीब्यूशन काफी लिमिटेड है, हमारे यहाँ पे एयरवेज का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। Waterways contribute about 1% of the country's transportation. Approximately 90% of India's foreign trade is conducted through waterways. Airways are more developed, ठीक है, than Brazil. Okay, communication अगर आप देखोगे ब्राजील और इंडिया में, ब्राजील में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर एक्सट्रीमली डेवलप्ड एंड इफेक्टिव, काफी इफेक्टिव हैं और डेवलप्ड भी हैं। मोर देन 45% ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन यूजेस द इंटरनेट, तो 45% से ज्यादा भाई साहब ब्राजीलियन पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करता है। More developed in south central Brazil but less developed in north and northwest. Brazil is all set to send its domestically made satellites into space with its own rockets. तो ये अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के फिराक में है, ठीक है, ये ऑलरेडी डेवलप कर चुका है रॉकेट्स को और नाउ इट इज नाउ गोइंग टू लॉन्च द सैटेलाइट्स एंड इंप्रूव इट्स टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स वेयर इन इंडिया, इंडिया में भाई साहब बहुत तरीके के सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट, सो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट भाई साहब आपके इंडिया में यूज होता है। द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम इन इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय इसरो, इसरो भाई साहब इसको लॉन्च कर चुका है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड टाइम की बात करें, ब्राजील में भाई साहब वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, फ्रॉम द एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट टू एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट द डिफरेंस इज ऑफ 168 मिनट्स, ठीक है, आपके एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट से एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट तक
जो डिफरेंस है वो 168 मिनट का है, ठीक है, 2 आवर्स 48 मिनट्स। इसीलिए इस वास्ट लॉन्गिट्यूडिनल टाइम जोन को भाई साहब 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्राजील हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड ब्राजील इज बिहाइंड जीएमटी बाय 3 आवर्स। So the difference is basically 2, 3, 4 and 5 hours. There are 4 time zones which exist in Brazil. Okay, it is behind GMT, that is Greenwich Median Time, by 2, 3, 4 and 5 hours. The official Brazilian time BRT is 3 hours behind GMT. ठीक है, इंडिया में भाई साहब आपका वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज 120 मिनट्स। 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 120 मिनट का है। The 82.5 degree east or 82 degree 30 minutes east longitude is the IST and it passes through Allahabad. ये इलाहाबाद से भाई साहब पास कर रहा है। IST is ahead of the Greenwich Median Time by 5 hours 30 minutes. तो IST भाई साहब Greenwich Median Time से आगे है। कितना आगे है? 5 hours and 30 minutes. Clearum people? ठीक है? So that basically completes the chapter here for transport and communication. तो आपका अभी क्या बाकी रहता है? फिजियोग्राफी, ड्रेनेज। ओहो, 1, 2, 3, 4 इतने सारे, हाँ ये सारे हो गए हैं। 11 और 12 बाकी, 12 बाकी है सिर्फ, ये सारे हो गए ना। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज इज डन, राइट। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज व्हाट रिमेन्स बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। तो एक चैप्टर आपका ज्योग्राफी का बाकी है, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, राइट। बहुत बढ़िया भाई साहब।